A very good evening, everyone. I am Sushmita and I will be your anchor for this winter school training program. On behalf of Vital Biotech, Agriculture Forum for Technical Education of Farming Society Kota, Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya Raipur, University of Agricultural Sciences Raichur Karnataka, Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya Bilaspur, Chhattisgarh, and Farmers Park, Hyderabad, Telangana. I cordially welcome you all to this 21 days winter school training on fostering environmental sustainability through food security, agricultural, and modern science innovations. Vital Biotech is India's leading publication, research, and training institute whose goal is to tackle the world's most pressing problems related to food and agriculture. Whereas the Agriculture Forum for Technical Education of Farming Society Kota serves as a spiracle between the network of rural communities in India and other stakeholders, such as the government, development organization, and corporate entities. Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, that is IGKV Raipur, Chhattisgarh, was established on January 20, 1987. IGKV has a primary mandate to provide education, conduct research, and offer extension services in the field of agriculture and related areas. Its work plays a vital role in improving agricultural practices and the lives of farmers in Chhattisgarh. University of Agricultural Sciences Raichur came into existence on 22nd November 2008 through bifurcation from USA Dharwad. It is the third agricultural university established in the state after Bangalore and Dharwad in Karnataka. With the establishment of USA Dharwad in 1986, Raichur still had the privilege of being the second largest campus and a major hub of education in this region. Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, established in June 2012, has nearly 95 government and private colleges affiliated in four districts of Chhattisgarh state, which together constitute the jurisdiction of ABVV. The university plans to develop a strategy for enhancing the range of educational approaches and the use of technology. As a part of this approach, the university plans to start classrooms into state of art ones, enabling teachers to teach using a wide variety of media. Farmers Park is a platform committed to empowering organic and natural farmers across India by providing farm advisory services, free soil testing, and marketing support. It aims to promote sustainable farming practices, helping farmers maximize their yield while protecting the environment. Through their services, they strive to create a strong, eco conscious agricultural community nationwide. This evening, we are indeed fortunate to have a honorable dignitary among us. It is my privilege to introduce Dr. Surendra Kumar Chandania. Sir is an accomplished academic and researcher specializing in soil and water engineering. Currently working as an assistant professor cum scientist at BRSM College of Agricultural Engineering and Technology in Mungeli, Chhattisgarh, he has a robust academic foundation holding a PhD from IIT Roorkee in Water Resources Development and Management and an MTech in Soil and Water Engineering from Indira Gandhi Agricultural University, Raipur. His expertise spans hydrological modeling, climate change impacts, water resource management, and geospatial analysis. Sir has been actively involved in significant national projects, including hydrological studies of Upper Ganga Basin and Mahanandi Godavari link, and leads research on integrated farming system. With expertise in advanced tools like ArcGIS, MATLAB, SWAT, and Python, he brings technical depth to his work in hydrological and environmental analysis. His scholarly contribution includes several journals articles, book chapters, and conference papers, alongside editing a book series on hydrology and climate change. Recognized for his excellence, Dr. Chandniya has received several awards, including the Best Water Resource Student Awards in 2016 and National Postdoctoral Fellowship in 2017. He is also an active member of esteemed organizations like the Indian Association of Hydrologists
and the American Society of Civil Engineers. Beyond research, he contributes to education and capacity building through training programs, workshops, and mentoring postgraduates and undergraduate students on water sustainability and drought analysis. His work underscores a commitment to advancing knowledge and sustainable practices in water resource engineering. Sir, your remarkable achievements are truly inspiring, and it is impossible to cover them all in such a brief time. With great respect, I warmly welcome you and hand over this virtual stage to you. Over to you, sir. Thank you, Susmita. Very good evening to all of my basically colleagues and the attendees, and basically the Jiten Mehta sir, Soumitra Tiwari sir, and organizing secretary and other dignitaries and faculty members and my dear friends. And today's first one, myself, Dr. Surendra Chandania. I am from Bhilai, but I did my MTech, BTech, and MTech from Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya. That is already known. And I did my PhD from IIT Roorkee. And today's my topic is the best practices of water conservation and efficient utilization of the water to get maximum production per drop of water. Okay, so just I am sharing. I'm audible. No? Yes, I'm sir. audible. Yes, audible, sir. Yes. Audible. Yeah, just a minute. I'm just sharing. Is visible? Visible, sir. Visible. Okay. The today's topic is the best practices of the water conservation and efficient utilization of water to get the maximum production per drop of water. That entire topic is segregated into three parts. Basically, that broader area is related to that water set because that majority of the water resources and all those things is under covered by the water set. And second was the medium area that will be considered in the irrigation and micro irrigation systems. And the third one is the smaller or micro level. That is a sensor based automated micro irrigation system. Okay. So I welcome to all. I'm just starting my presentation. Okay. Just a minute. It is not sliding. This is first one. What is watershed? Basically that watershed is the hydrological catchment which is receives the sufficient amount of water, rainfall, and the dispose out by the single outlet. So basically, you see here that line is drawn by that catchment area because that is the basically the catchment area, just something like that Mahanadi river basin, something like that. Okay, that water shed has received the sufficient amount of rainfall. Basically, that rainfall occurred in the particular catchment and which is disposed out by the single outlet. That is known as the water shed. Okay, that brown line is known as the ridge line, and that overall that blue line is known as drainage. Okay, whatever rainfall occurred in the water set that will be reached by the outlet by the drains, okay, or sub drains or the channels, something like that. Okay, and what is the concept of the water set? Okay, just a minute now. This is the catchment area. Basically, you see here that arrow is upstream to downstream. Basically, that overall rainfall occurred in the catchment, and that is rainfall in the form of that precipitation. That is rainfall is a form of precipitation basically, and that is disposed out by the small channels and together with that outlet. Okay, so that Sorry to interrupt, sir. Sir, yeah, if you can please use bilingual language. Sir. yeah, it's okay. Thank you, sir. And that watershed concept, basically that concept is if there is ridge line, you see here that ridge line, that one part is disposed out by the outlet, okay, and that another part is that rainfall occurred in the form of that runoff, and that will be reach up to the outlet. Okay, that is if you are you see that river, that overall water is the coming out by the any water set. Okay, here there is that common point, that is the outlet. Okay, that ridge line is something like that blue line, and the middle drainage, because drainage is the different type of drainage, that is first stream, second stream, third stream.
whenever the two first order stream together and join with confluence point, that will be considered as second order stream. Okay. Here there is contour line. Contour line is nothing but that is an imaginary line which is equal elevated points together. Because if you are seeing here, if if you are seeing that upstream, that line is always showing. If suppose here is 230-meter, that elevation that will always lie between 230 meter elevation from the mean sea level. Okay. This is how to plot that watershed. If there is two different method of the plotting that watershed, that first one is that is a traditional method which is drawn by the topo sheet. Whatever the topo sheet we are using here, that topo sheet is always that contour line will be perpendicular to the your ridge line. Okay, and disposed out by the single outlet. And second method is related to GIS approach. GIS approach means we are using for GIS method, we can use that DEM, digital elevation model. And digital elevation model we can module with the help of the ArcGIS software or other GIS software. Okay, whatever that outlet is delineated by the single point, whatever point is downstream, Sorry to that will be. interrupt once again, sir. Sir, Yeah. sorry, I'm interrupting you again and again. Sir, if you would be bilingual, that would be a great help, as some of our students are from North region and some of are from South region. So if you can like speak in English and Hindi, sir. Okay, okay, it's okay. इफ सपोज Thank you, sir. यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि वाटर से डिलीनिएट करना है, देर इज टू डिफरेंट मेथड. दैट फर्स्ट मेथड इज रिलेटेड टू डायरेक्टली यू कैन यूज दैट टोपोसीट. अगर टोपोसीट में आप देखेंगे तो टोपोसीट में डिफरेंट इन्वेंट्रीज ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिखेंगे, जैसे कि कहाँ पे रिवर है, कहाँ पे माउंटेनियस रीजन है, कहाँ पे आपका आउटलेट है, वो सारा कुछ यहाँ पे दिखेगा आपको. अगर आपके पास कोई ऐसा डिप्रेशन है या कोई ऐसा आपके पास कोई एरिया है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि एलिवेशन सपोज 500 टू 300 आ रहा है, तो 500 इज ऑलवेज द अप स्ट्रीम एंड 300 इज द डाउन स्ट्रीम फ्रॉम द मीन सी लेवल. पहले क्या होता था, मीन सी लेवल कराची से लिया जाता था. अब कहाँ से लेते हैं हम, अभी मुंबई से लेते हैं मीन सी लेवल. तो आप कोई भी रेलवे स्टेशन में जाएंगे वहां पे भी आपको मीन सी लेवल वहां पे देखने मिलेगा. तो दैट विल बी डिलीनिएटेड. डिलीनिएशन इज द प्रोसेस ऑफ टू डिलीनिएट द रीज लाइन ऑफ द वाटर सेट. ओके, वाटर सेट को डिलीनिएट करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि पानी का मूवमेंट कैसा है, मतलब अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम पानी कैसे जाएगा, और वो किससे होता हुआ आएगा, वो ड्रेनेज से होता हुआ आएगा. ओके, आप यहाँ पे देखेंगे इस वाले फिगर में, अब वाटर सेट का जो भी कॉन्सेप्ट है आपने देखा है, ये जो ड्रेन लाइन है आपने देखा होगा, कोई कहीं पे माउंटेनियस रीजन में आप कभी गए होंगे तो देर इज लॉट ऑफ ड्रेन लाइन्स. अब जब वहां पे बारिश होती है या प्रेसिपिटेशन होता है तो वहां पे क्या होता है कि जैसे रेनफॉल हुआ उसके तुरंत बाद वहां पे पानी नहीं आता, उसमें कुछ टाइम लगता है. इट इट लाइक लाइक मतलब एक दो दिन भी कई बार लग जाता है कि आपका आउटलेट तक पानी आने में. तो हम वहां पे क्या करते हैं कि वहां पे हम एसेस करते हैं कि कितने टाइम में पानी हमारा आउटलेट से लेके सॉरी अप स्ट्रीम से आउटलेट तक कैसे आएगा. तो वो टाइम को हम नोट करते हैं, इसको टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कहते हैं. ठीक है. तो वाटर सेट, वाई वाटर सेट, दैट अनइवन रेनफॉल. कहीं पे आपको ऐसा पता, आपको अगर कोई प्लानिंग करना है तो हमारे पास क्या है, इंडिया में आप देखेंगे 1400 आपकी एनुअल एवरेज रेनफॉल है. एवरेज एनुअल रेनफॉल 1400 है, और अगर छत्तीसगढ़ का देखेंगे तो लगभग 1200 का रेनफॉल है. लेकिन आपके पास थ्रू आउट द ईयर हमारे पास क्या होगा, 1200 ही रेनफॉल हो रहा है या 1400 ही रेनफॉल हो रहा है. बट आपको मैनेज करना है. और खरीफ सीजन आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, but in rabi season there is some problem because there is no rainfall, there is some no water resources. वहां पे कोई वाटर रिसोर्सेज स्ट्रक्चर्स नहीं है, तो आपके पास इरिगेशन करने के लिए कोई पानी नहीं होता है, तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे. तो बेसिकली जब वाटर सेट का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया, तो इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट कहते हैं, वो मैं आगे आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कैसे उसको मैनेज करते हैं. तो अनइवन रेनफॉल हो रहा है, इरेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, बिकॉज इफ सम एरिया हैविंग ग्रेट रेनफॉल बट सम एरिया देयर इज नो रेनफॉल. आप तेलंगाना की बात करोगे, तेलंगाना में पानी बहुत कम गिरता है. अगर आप चेरापूंजी, अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करोगे, बारिश बहुत होती है. तो आपका जो एवरेज रेनफॉल है सबका मिला के आपको 1400 रेनफॉल मिल रहा है. बट हाउ यू कैन मैनेज दैट रेनफॉल इन टर्म्स ऑफ different water resources structure as well as for the planning of the agriculture and water resources planning, है ना. इरोडेड लैंड, अगर आपके पास आजकल क्या हो रहा है, व्हाट इज द क्लाइमेट चेंज, बेसिकली क्लाइमेट चेंज इज द लॉन्ग टर्म बिहेवियर ऑफ क्लाइमेटिक
पैरामीटर्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि आज की डेट में अब क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, बहुत लिमिटेड बारिश हो रही है, या बारिश हो रही है बहुत तेज हो रही है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल बहुत ज्यादा है, और उसको हम कम टाइम में, जो पहले बारिश होती थी पूरे थ्रू आउट द जून से सितंबर तक जो बारिश होती थी, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता था। अब क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है, वो बारिश हो रही है वो एक सेगमेंट में हो रही है, कि आज बारिश हुई, आज 2 घंटे बारिश हुई, बहुत तेज बारिश हो गई, तो हाउ यू मैनेज दैट ओवरऑल रेनफॉल इन द फॉर्म ऑफ रन ऑफ। अब रेनफॉल कन्वर्ट होगा रन ऑफ में, जैसी बारिश होगी, बारिश होने के बाद क्या होगा कि सेचुरेशन होगा, सेचुरेशन स्टेज आएगा सॉइल का, उसके बाद फिर वो रन ऑफ जनरेट होगा। तो इरोडेड लैंड, डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट, है ना, depletion of the vegetation in the arable and non-arable land, degradation of forest, basically land use is very fastly changing, okay, because पहले क्या होता था, देखेगा कि अब हमारे पूरे इंडिया में मोस्ट ऑफ द एरिया इज फॉरेस्ट एरिया, तो फॉरेस्ट एरिया is converted in agricultural land, and agricultural land nearby the road it will be converted into settlement और build up area, okay। तो क्या हो रहा है कि जो बारिश हो रही है, पहले क्या होता था कि पत्तों से होता, इंटरसेप्शन होता था, फिर उसके बाद फिर आपका जो सॉइल है उसको एब्जॉर्ब कर लेता था ठीक से। अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब क्या हो रहा है कि वहां से पेड़ पौधे चले गए, अब बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग बन गई तो उसका कर्व नंबर बहुत ज्यादा हो गया, कर्व नंबर इज समथिंग लाइक दैट, इफ इट इज कर्व नंबर इज एक्सीड टू 60 और अबव, तो रन ऑफ विल बी ड्रास्टिकली चेंज, मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप देखोगे कंक्रीट के, अगर आप सतह पे अगर पानी डालोगे तो पानी डायरेक्ट बह जाएगा, अगर आप पानी अगर आप सॉइल में डालोगे तो क्या होगा, सॉइल से इन्फिल्ट्रेट होगा, फिर उसके बाद पानी आगे बढ़ेगा, वो सेचुरेशन स्टेज आने के बाद पानी आगे बढ़ेगा, तो समथिंग लाइक दैट। द पुअर सॉइल डेप्थ, सॉइल डेप्थ इसलिए पुअर हो जा रहा है क्योंकि अपना क्या हो रहा है, डे बाय डे कंस्ट्रक्शन इतना ज्यादा हो रहा है कि सॉइल डेप्थ आप एक जगह से ड्रेजिंग कर रहे हैं दूसरी जगह ले जा रहे हैं, इंक्रीज इन द लैंड स्लोप, increase the velocity of the runoff and the soil carrying capacity, basically if there is any runoff, तो आपके पास जहां पे स्लोप ज्यादा होगा तो क्या होगा, पानी के साथ आपका जो सेडिमेंट है वो भी मिक्स होगा, और वो स्लोप के साथ अपना स्पीड इतना ज्यादा कर लेगा कि वहां पे आपका इरोजन की प्रॉब्लम आ जाएगी, जिसको अपरदन बोलते हैं हिंदी में, है ना, लो प्रोडक्टिविटी, फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ रही है, पूरा पुअर मैनेजमेंट ऑफ लैंड, ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। वाटर सेट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वाटर सेट, टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। बेसिकली क्या होगा, जब आप कहीं पे, एक्चुअल में वाटर सेट का कॉन्सेप्ट इसलिए आया, क्या होता था कि कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे अपना पानी की समस्या है, तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी भी हो जाता था, कि वहां पे जो पौधे हैं उसमें रहने वाले पक्षी हैं वो सारा कुछ भी माइग्रेट हो जाते हैं। तो अब क्या हो गया, इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन को क्या हो रहा है कि डे बाय डे पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एंड दैट लैंड इज fixed, okay, that land is fixed and that population is increasing, that demand is also increasing, but हमारे पास उतने ही लैंड में हमको ज्यादा प्रोडक्शन लेना है, तो हाउ वी मैनेज रिस्टोर द इकोलॉजिकल बैलेंस, बिकॉज इकोलॉजिकल बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपका जो इकोलॉजिकल चैन अगर वर्क नहीं करेगा तो देयर इज लॉट ऑफ डिजीज विल बी जनरेटेड, ओके। एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बेसिकली अगर किसी एरिया में हमको डेवलपमेंट चाहिए तो वहाँ का एम्प्लॉयमेंट को भी हम सपोर्ट करते हैं डेवलपमेंट के साथ, लाइवलीहुड ग्रोथ, वहाँ की ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो सब कुछ वहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड वाटर साइड मैनेजमेंट है, उसको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे देखेंगे कि जस्ट अ मिनट, दिस इज बेसिकली दैट लाइन डायग्राम ऑफ द ओवरऑल वाटर साइड, हाउ वी मैनेज दैट वाटर साइड और in the form of integrated system, okay, this is stream, basically that stream is always in the any landforms, okay। उसके बाद क्या हुआ, हमने डिलीनिएट किया, डिलीनिएट फ्रॉम दी आउटलेट, आप नीचे देख रहे होंगे एक मेन बेसिन है, या मेन आप बोल सकते हैं रिवर है, रिवर से हमने किसी पॉइंट से डिलीनिएट किया, तो हमारे पास ये डिलीनिएट करने के बाद ये आया कि हमारे वहां पे जो पानी आएगा वो इसी कैचमेंट का आएगा, तो दैट प्रोसेस ऑफ द क्रिएटिंग दैट वाटर सेट इज नोन एज डिलीनिएशन प्रोसेस, ओके। अब इसके बाद आप देखेंगे कंटूर लाइन, आप देखेंगे एवरी कंटूर लाइन कट दैट ड्रेन लाइन इन परपेंडिकुलर, ओके, परपेंडिकुलर उसको काटता हुआ आएगा पानी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें मैनेजमेंट करना है। पहले क्या हुआ, ये डिग्रेडेड फॉरेस्ट था, मतलब डिग्रेडेड लैंड था, बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये डिग्रेडेड लैंड है। उसके बाद हमको इसको मैनेज करना है, कैसे करेंगे हम मैनेज, मैनेज करने के लिए हम लोग यहाँ पे कंटूर्स डाले, कंटूर फार्मिंग कर सकते हैं आप, पॉन्ड्स लगा सकते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट पॉन्ड्स दिख रहे होंगे, देयर इज 5 पॉन्ड्स, वी कैन मैनेज दैट वाटर साइड इन द फॉर्म ऑफ वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, ओके। पहले पॉन्ड आपने यहाँ पे
इंस्टॉल किया, फिर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स आपने इंस्टॉल किया। यू सी हियर नियर बाय द ड्रेन लाइन वी कैन ऐड सम फीचर्स, है ना, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, पॉन्ड्स, ओके। हियर रिटेनिंग वॉल, बिकॉज रिटेनिंग वॉल इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि हमारे पास क्या हुआ कि पानी जो आता है वो रन ऑफ हो जाता है, रन ऑफ होने के कारण क्या होता है उसमें बहुत सारे सेडिमेंट पार्टिकल भी आ जाते हैं। तो सेडिमेंट पार्टिकल जितने ज्यादा होंगे, सेडिमेंट लोड उतना ज्यादा होगा, जितने ज्यादा वहां पे इरोजन की प्रॉब्लम होगी। तो वी कैन रिड्यूस द इरोजन or by the conservation of that water also, that is we can use the retaining walls। तो रिटेनिंग वॉल्स में जहां पे आप देखेंगे मेंडरिंग है, मतलब रिवर जहां पे मुड़ा हुआ है, या कोई ऐसा हमारे पास जो पानी का जो फ्लो आ रहा है ऊपर से वो उसमें कहीं पे ऐसा मेंडरिंग है या मुड़ा हुआ है, तो वहां पे क्या होगा कि पानी का जो वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगा, साथ ही सेडिमेंट है, तो वहां पे इरोजन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होगी। वो पानी अपना पाथ है जो, मतलब रन जो अपना पाथ लेगा, वो पाथ वहां से अपने हिसाब से ले लेगा एज पर वेलोसिटी। तो उसको रिटेन करने के लिए हमने यहाँ पे रिटेनिंग वॉल लगाया हुआ। फिर हमने चेक डैम बना दिए, चेक डैम फॉर दी कंजर्वेशन ऑफ वाटर एज वेल एज सेडिमेंट। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ वाटर बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, टू इंक्रीज द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। इंक्रीज ऑफ टाइम ऑफ कंसंट्रेशन मतलब कि जो पानी 1 घंटे में नीचे डाउन स्ट्रीम तक आ जाता था रिमोटेस्ट पॉइंट से, उसको हम बढ़ा रहे हैं इसलिए क्योंकि जितने ज्यादा समय तक के वहां पे पानी हम रोक के रखेंगे उतना वहां पे इनफिल्ट्रेशन ज्यादा होगा, या डीप पर्कोलेशन ज्यादा होगा, या वाटर कंजर्वेशन ज्यादा होगा। साथ ही साथ क्या होगा कि सेडिमेंट का डिपोजिशन है वो वहां पे ज्यादा होगा, कि सेडिमेंट का भी कंजर्वेशन हो रहा है, वाटर का भी कंजर्वेशन। आफ्टर दैट वी आर एडिंग दैट कंटूर बंड्स। अब कंटूर बंड्स भी आप वहां पे देंगे जहां पे 9% स्लोप से ज्यादा है हमारे पास लैंड, तो वहां पे एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया, या कंटूर बंड हो गया, स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गया, ये सारा कुछ हम वहां पे एग्रो एस्ट्रोलॉजी हो गया। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे आगे हमने कंटूर ट्रेंच बनाया। ट्रेंच और पिट दो टाइप के होते हैं, इफ इट इज स्क्वायर दैट इज अ पिट, इफ इट इज रेक्टेंगुलर दैट इज ट्रेंच, ओके। तो ट्रेंच इज ऑल्सो मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, ओके। तो हमारे पास क्या हुआ कि कोई ऐसा सरफेस है जो अंडुलेटिंग सरफेस है और स्टीप स्लोप सरफेस है, तो वहां पे हम लोगों ने क्या किया, हमने कंटूर ट्रेंच लगा दिया या एग्रो फॉरेस्ट्री कर दिया। तो हमारे पास देखिए अब जो वाटर सेट बिल्कुल खाली था, तो वन बाय वन हमने यहाँ पे क्या किया, वाटर सेट मैनेजमेंट करते गए हम, है ना। मॉइस्चर कंजर्वेशन पिट हमने बना दिया, है ना, ट्रेंच बना दिया, कंटूर बंड बना दिया, और हमारे पास पॉन्ड बना दिया, हमने चेक डैम बना दिया, रिटेनिंग वॉल कर दिया, एग्रो फॉरेस्ट्री कर दिया। तो ये सब हमने ऐड करते करते क्या हुआ कि ये वाटर सेट हमने क्या किया, इंटीग्रेटेड अप्रोच से हमने इस वाटर सेट को रिवाइव कर दिया। तो रिवाइव करने के बाद क्या हुआ आप देखेंगे, बेसिकली ये जो पहले वाटर सेट था आप देखेंगे, नंबर वन ओरिजिनल। ओरिजिनल मीन्स दैट इज अ, मतलब प्रीवियस, दैट इज अ हिस्टोरिकल पीरियड इमेज, ओके। तो पहले क्या था, बहुत अच्छा था, फिर उसके बाद क्या हुआ, वहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण क्या हुआ, वहां पे बहुत सारे डिग्रेडेशन हो गए। हमने फॉरेस्ट काट दिए, फॉरेस्ट काटने के बाद हमने क्या किया, वहां पे सेटलमेंट या बिल्डअप एरिया बना दिया, या एग्रीकल्चर लैंड बना दिया। ये सारा कुछ करते गए तो क्या हुआ, वहां पे डिग्रेडेड हो गया वो लैंड। बायोडाइवर्सिटी भी हो गई, वहां पे जितने वहां पे वो थे, जीव जंतु थे या जो भी पक्षियां थे, वो भी माइग्रेट हो गए, सारा कुछ हो गया। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, हम फिर से फॉरेस्ट को फिर से ग्रो करें, या और कुछ बाकी जितने हमने कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस बताए पीछे, वो सब कुछ हमने ऐड किया, अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये रिवाइव हो गया। आप देखेंगे जो थर्ड वाला है रिस्टोर्ड है, ये डिग्रेडेड है, ये ओरिजिनल है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमने क्या किया, वाटर सेट मैनेजमेंट कर दिया। मतलब हमने एक एक करके बहुत सारे अप्रोच लगाए और जिससे हमने मैनेज कर दिया। अब आप देखेंगे कि एडवांस लेवल पे अगर आप इसको इस चीज को करोगे तो आपको क्या होगा कि जहाँ पे डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा है, तो ऐसे जगह पे हमको क्या है, वहां पे ज्यादा हमको फोकस की जरूरत है। तो प्रायोरिटाइज करना भी बहुत जरूरी है। प्रायोरिटाइज मतलब कि आपको कौन से एरिया में सबसे ज्यादा जरूरत है, जहाँ पे ज्यादा डिग्रेडेड लैंड है, तो उसको आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है। तो उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, एएचपी, एनालिटिकल हायरार्की प्रोसेस वगैरह है, वो सारा कुछ है, वो एडवांस टेक्निक्स है जिससे आप उसको अलग अलग क्राइटेरिया के थ्रू आप देख सकते हैं। अब ये सेकेंड पार्ट आ गया हमारा, जो मीडियम अप्रोच है, बेसिकली जो इरिगेशन मेथड्स। इरिगेशन मेथड्स डिफरेंट टाइप्स के, आप तो ऑलरेडी आई थिंक मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द पर्सन बिलोंगिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर बैकग्राउंड। तो यहाँ पे इरिगेशन मेथड्स है, आपके सरफेस मेथड है, सरफेस मेथड है, बेसिन इरिगेशन है, बॉर्डर इरिगेशन है, फरो इरिगेशन है। फिर उसके बाद आपके प्रिसाइज इरिगेशन में आ जाएंगे, आपके माइक्रो इरिगेशन में आ जाएंगे, आपके जो स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन।
ओके, तो इरिगेशन मेथड को भी हमने सेग्रीगेट किया है थ्री पार्ट्स में, सरफेस, सब सरफेस और स्प्रिंकलर इरिगेशन में। तो सरफेस इरिगेशन बेसिकली, बिकॉज अब सरफेस इरिगेशन भी बहुत कम यूज कर रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा है, एक तो इरेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, दूसरा ग्राउंड वाटर ऑल्सो डिप्लीटिंग, है ना। तो ये सबको देखते हुए अब क्या हो गया कि हमने सरफेस इरिगेशन मेथड को हम अडॉप्ट करना लगभग बंद कर दिए हैं। बेसिकली इन छत्तीसगढ़ के यहाँ पे बेसिकली ये हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि राइस मेन क्रॉप है, तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे इरिगेशन को यूज करते हैं। बट द मोस्ट ऑफ द area we are using that sprinkler and drip irrigation. Okay, so here the layout of the drip irrigation, basically drip irrigation के लिए different components चाहिए रहते हैं हमको। तो ड्रिप इरिगेशन दो टाइप से होता है, या तो फिर आप एक स्टोर्ड वाटर को आप यूज कर सकते हैं या फ्लोइंग वाटर को यूज कर सकते हैं। तो आपका जो क्राइटेरिया है, आपने जिस क्राइटेरिया के थ्रू आपको इरिगेट करना है उसी एरिया में, तो आप उसमें चॉइस करते हैं। अगर आपके पास अगर रिवर वाटर लेना है तो आपको प्राइमरी फिल्टर आपको दूसरी लेनी पड़ेगी, सैंड सेपरेटर लेना, हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर लेना पड़ेगा। अगर आप ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं तो आपको डिस्क फिल्टर से भी काम चल जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि हेड यूनिट होता है और टेल यूनिट होता है और मिड यूनिट होता है। तो आपका जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है उसमें आप देखेंगे, हम लोग बेसिकली यहाँ पे तो ग्राउंड वाटर ज्यादातर यूज करते हैं, तो उसके लिए हम लोग जो पेपर फिल्टर हम लोग यूज करते हैं। तो ये सबसे पहले क्या होता है, हम जो भी स्टोर्ड वाटर है वहां से हमने उसको सक करना है थ्रू यूज ऑफ द पंप, बाय द यूज ऑफ पंप। तो हम लोग पंप से उसको पहले क्या करते हैं, पहले जो स्टेज है, स्टेज के अकॉर्डिंग कितने स्टेज, मतलब ग्राउंड वाटर कितना नीचे है, उसके हिसाब से हमने पंप सिलेक्शन किया। पंप सिलेक्शन करके हमने सबसे पहले क्या किया, पंप का हमने डिस्चार्ज देखा कि एक बाल्टी ले लिया हमने 15 लीटर का, उसमें पंप का देखा कि कितने देर में वो बाल्टी भर जा रही है या बकेट वो भर जा रहा है। तो उससे हमको ये पता चल जाता है कि कितना डिस्चार्ज है उसका। तो लीटर पर आवर, लीटर पर सेकेंड, लीटर पर मिनट, इट मे बी अप टू यू, वट एवर यूनिट यू आर चूजिंग, है ना। उसके बाद हमने पंप कितने देर चलाना है और कितने एरिया को इरिगेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, जो ओवरऑल जो यहाँ पे अब दिखा रहे हैं, हमने ड्रिप इरिगेशन का लेआउट दिखा रहे हैं। तो इसमें हेड यूनिट में क्या होता है, पंपिंग सिस्टम होता है। पंपिंग सिस्टम के बाद हम इसको क्या करते हैं, वेंचुरी से जोड़ते हैं, साइक्लोन फिल्टर लगाते हैं या डिस्क फिल्टर लगाते हैं, सैंड फिल्टर लगाते हैं। सैंड मीडिया फिल्टर वहां पे यूज होता है जहाँ पे हम रिवर से डायरेक्ट पानी लेते हैं, क्योंकि वहां पे जो पानी में सैंड के पार्टिकल बहुत सारे होते हैं। तो इट मे बी रिड्यूस बाय द यूज ऑफ द सैंड फिल्टर, बिकॉज अगर आप डायरेक्टली यूज कर लोगे तो आप देखेंगे ड्रिप इरिगेशन में माइक्रो ये क्या बोलते हैं, एमिटर्स होते हैं। तो एमिटर्स में जाके वो सैंड पार्टिकल फंस जाएगा और हमारा पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। तो हमको इसमें दो तीन चीजें ध्यान में रखनी होती है। एक तो फ्लश वॉल आपको देखना पड़ता है, जो फ्लश वॉल आप नीचे देख रहे होंगे। एक तो जो मेन लाइन होता है डायरेक्टली आपका जो फील्ड तक आता है वो रहता है मेन लाइन। उसके बाद उसकी थिकनेस थोड़ी सी कम होती है, उसको बोलते हैं सब मेन लाइन, जिसकी 63 mm थिकनेस होती है। और फर्स्ट में 75 mm की मेन लाइन की थिकनेस होती है। उसके बाद लेटरल्स होते हैं, आप ब्लैक वाली पाइप देखे होंगे, है ना, 8 mm की पाइप होती है, 6 mm 8 mm की पाइप होती है, उसको हम लोग लेटरल बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास जहां जहां पे आपके पौधे हैं वहां पे ड्रिपर होते हैं। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक तो ऑनलाइन होता है, एक इनलाइन होता है। ऑनलाइन ड्रिपर मतलब कि उसमें आप खुद पंचर करके आप उसमें ड्रिपर लगाते हो। उसका अलग अलग एलपीएच होता है, लीटर पर आवर उसकी यूनिट होती है कि अगर 2 लीटर से लेके 12 लीटर पर आवर तक के आप एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप, आपका कौन सा क्रॉप आपने यूज किया है, वहां पे आपको कितना पानी देना है और कितने देर तक के पंप चलाना है, उस पर डिपेंड करता है वो। अगर वही आपके पास ऐसा लग रहा है कि हमारा जो पंपिंग यूनिट है, हमारा जो प्रेशर है वो आधे एकड़ के हिसाब से या 1 एकड़ के हिसाब से सफिशियंट है, बट वी हैव द 3 एकड़, तो आपके पास उतने एनआरवी लगाने पड़ेंगे, नॉन रिटर्न वॉल लगाने पड़ेंगे, आपको वॉल उतने ज्यादा लगाने पड़ेंगे। आप एक एक करके तीनों को इरिगेट कर सकते हो एज पर यूर प्रेशर। तो यहाँ पे आपको जो ड्रिप इरिगेशन के लिए जो प्रेशर चाहिए होता है, लगभग 1.5 to 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर में चल जाता है ड्रिप इरिगेशन। ओके, अब वही सिमिलर काइंड ऑफ थिंग इन स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन में भी सेम चीज रहता है, सारा कुछ रहता है। बट यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, स्प्रिंकलर का राइजर पाइप और वहां पे स्प्रिंकलर का डिवाइस लगता है, जो हेड यूनिट होता है उसका ऊपर का, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो नोजल होता है, नोजल वो सेल्फ रोटेटिंग होता है। आपका जितना प्रेशर आएगा उसके अकॉर्डिंग वो सेल्फ रोटेट होता रहेगा। आपने स्प्रिंकलर देखा होगा तो स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन में ये अंतर है कि बेसिकली ये क्या आर्टिफिशियल रेनफॉल जनरेट करता है, इसकी इफिशियंसी ड्रिप इरिगेशन से थोड़ी कम होती है। इसकी 65 to 75
85% के आसपास इसकी इफिशियंसी होती है। और ये बहुत सारी चीजों से इफेक्ट हो जाता है। बेसिकली अगर टेम्परेचर ज्यादा है, विंड स्पीड ज्यादा है, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट हो जाएगा। अगर एक साइड से हवा चल रही है, दैट विल बी स्क्यूड इन वन साइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पैटर्न, मतलब वेटिंग पैटर्न का। ओके। और दूसरा क्या होता है, सेकेंड टाइम में आप देखेंगे कि जैसे ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन की इफिशियंसी 95%, 85 to 95% इफिशियंसी होती है। अगर हम 1 लीटर पानी दे रहे हैं तो 95% पानी है वो पौधों को मिलेगा। इसकी एक ब्यूटी और अच्छी है, इसकी एप्लीकेशन है कि आपको फर्टिलाइजर जो देना है आपको, वो डायरेक्टली आप वहां से वेंचुरी के थ्रू आप फर्टिलाइजर दे सकते हैं। ठीक है, ये मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें जाऊंगा नहीं। ये वॉल वॉल है, वॉल कैसा, डिफरेंट टाइप के वॉल्स होते हैं, कौन सा वॉल आपको यूज करना है। फ्लश वॉल इसलिए दिया जाता है कि फ्लश वॉल में आपको क्या होता है कि जैसे मान लो कभी ऐसा हुआ कि आपने फर्टिलाइजर डाला, लेकिन फर्टिलाइजर में भी कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो फुल्ली सॉल्यूबल नहीं है, तो उसको आप डिस्पोज आउट करोगे, एक बार क्लीनिंग करना पड़ता है, एसिड क्लीनिंग करना पड़ता है। तो एसिड क्लीनिंग के थ्रू आप देख सकते हो। प्रेशर गेज, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस, दैट प्रेशर गेज, बिकॉज इफ प्रेशर इज इंक्रीज तो आपका पाइप डैमेज होने का भी प्रॉब्लम हो सकता है। कि अगर आपका जो मान लो ब्लॉकेज हो गया कहीं पे, आपको जितना प्रेशर सब नोजल में देना है इतना प्रेशर नहीं आया, और अगर प्रेशर ज्यादा हो गया तो आपके पाइप फट सकती है या डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, प्रेशर गेज लगाते हैं। तो प्रेशर गेज भी 3 जगह पे लगता है, एक तो या तो फिर वेंचुरी के पहले और बाद में, और एक तो एंड पे भी लगा सकते हैं आप। ओके, तो कितने बार का प्रेशर आप दे रहे हैं वहां पे, तो वो आप डिपेंड करेंगे। एक होता है वाटर मीटर। ये वाटर मीटर जनरली इंडिया में तो यूज नहीं होता है, बट फॉरेन कंट्री में ये मतलब मस्ट होता है कि आपने कितने देर में कितना पानी दिया, दैट विल बी मेजर्ड बाय द वाटर मीटर। कि कितना लीटर पर आवर दिया है, क्या दिया है, कितना लीटर पानी आपका गया है इस पाइप से, वो दैट विल बी मेजर्ड बाय द वाटर मीटर। ओके। अब यहाँ पे देखेंगे आप वाटर मीटर किस टाइप से अरेंजमेंट है इसका। वाटर मीटर यहाँ पे लगा हुआ है, उसके बाद फिर आपका प्रेशर गेज है, फिर आपका मैनुअल वॉल है कि आप वहां पे से रेगुलेट कर सकते हैं आप कितना पानी आपको देना है। ये सारा डिवाइस है जो पंप के बाद लगेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये फिल्टर है, सैंड मीडिया फिल्टर है। तो बेसिकली सैंड मीडिया फिल्टर जैसे बड़े प्रोजेक्ट में होता है, जैसे हमने 1 यूनिट लगाया तो अलग बात है, यहाँ पे अगर आप देख लोगे 3 यूनिट लगा हुआ है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट की बात हो रहा है। तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट में क्या होता है कि अपने जैसे रिवर से हमने पानी लिया, क्योंकि ग्राउंड वाटर रिस्ट्रिक्टेड होता है बड़े प्रोजेक्ट में। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम पानी लेते हैं रिवर से, तो रिवर से देयर इज सम, उसमें क्या होता है कि रेत के कण होते हैं, तो रेत के कण दैट विल बी सेपरेटेड बाय द सैंड मीडिया फिल्टर। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो भी रेत के कण है वो वहीं रुक जाते हैं और आगे आपका साफ पानी चला जाता है, और दैट विल बी इरिगेटेड। ओके। फिर उसके बाद आप देखेंगे ये इंस्टॉलेशन ऑफ द फिल्टर एंड फर्टिलाइजर यूनिट। आप देखेंगे जो सैंड मीडिया फिल्टर है यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, एक इनलेट होता है, टॉप में इनलेट होता है और नीचे आउटलेट होता है, और देर इज सम डिग्री ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट। ओके। तो अब यहाँ देखें सैंड है, पेबल है, ग्रेवल है, फिर आउटलेट है, फिर स्ट्रेनर है। स्ट्रेनर से क्या होता है कि बाद में भी अगर कोई कचरा होता है तो दैट विल बी रिमूव बाय द स्ट्रेनर। ओके। फिर यहाँ पे स्क्रीन फिल्टर है। स्क्रीन फिल्टर बेसिकली पेपर फिल्टर भी होता है। यहाँ पे पेपर फिल्टर और स्क्रीन फिल्टर दैट इज बोथ आर सेम। यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट स्मॉल जीएसएम के पेपर्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, ये पानी जब आता है अंदर, तो पानी उस पेपर फिल्टर के थ्रू प्यूरिफाई होके या वो फिल्टर्ड होके फिर आगे जाता है, और दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेन और सब मेन लाइन। तो उसमें आपको उसके बाद फिर क्या है, एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है, फिर आउटलेट से आप इरिगेशन के लिए आप यहाँ पे दे सकते हैं पाइप। ओके। फिर ये होता है हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर। हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर भी हम वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे हमारे पास कोई इम्प्यूरिटीज है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर से भी बहुत सारे रेत के कण हमको मिलते हैं, तो ऐसी जगह पे ग्राउंड वाटर से अगर कोई बहुत इम्प्यूरिटीज मिलती है, तो वहां पे हम लोग हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर यूज करते हैं। दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, वो रोटेट होता है पानी, और उसके जो कण है वो नीचे आ जाते हैं, और जो फिल्टर्ड वाटर है वो बाहर चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो उससे आप अपन वहां पे पानी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया डिस्क फिल्टर। आप देख रहे हो यहाँ पे डिस्क फिल्टर, ये भी यहाँ पे डिफरेंट डिस्क है, वो भी पेपर के होते हैं। आजकल ये जो डिस्क होते हैं पेपर के नहीं होते हैं, आजकल ये पीवीसी के बनते हैं। वो बहुत फाइन डिस्क होते हैं, वो रिंग जैसे होते हैं, उसको सबको कंप्रेस करके हम वहाँ पे फिल्टरिंग यूनिट बनाते हैं। आप देख रहे हैं नीचे वाले यूनिट में, वहाँ पे डिफरेंट डिस्क है, एन नंबर ऑफ डिस्क।
is compressed in the single unit and we will fresh the water. ठीक है, फिर हो गया फर्टिलाइजर टैंक। फर्टिलाइजर टैंक भी दो तीन टाइप के होते हैं। आप डायरेक्टली ओपन फर्टिलाइजर टैंक भी यूज कर सकते हो। ओपन फर्टिलाइजर टैंक में आपको वेंचुरी मीटर लगाना होता है। वेंचुरी मीटर से आपको क्या होता है, जो भी जितना प्रेशर आप रेगुलेट करोगे, मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों जगह प्रेशर गेज लगा होगा, उसके जो डिफरेंस के हिसाब से वहां पे वैक्यूम जनरेट होगा। वैक्यूम जनरेट होगा तो आपका जो फर्टिलाइजर है दैट इज ऑटोमेटिकली सक बाय द वेंचुरी मीटर, एंड हाउ मच अमाउंट यू रिक्वायर्ड that will be regulated by the pressure gauge. Okay, and you can directly apply in the field. Okay, तो यहाँ पे आप देखेंगे मेन लाइन से जस्ट पहले हम लोग क्या करते हैं, वेंचुरी मीटर लगाते हैं या फर्टिलाइजर टैंक लगाते हैं। उसमें ऑटोमेटिकली आप जो फर्टिलाइजर है उसको डिसॉल्व करके रखते हो, और उसके बाद कितना मात्रा आपको चाहिए वो रेगुलेट करके आप दे देते हो। कितनी डोज चाहिए किसी क्रॉप को, उसके अकॉर्डिंग आप उसको रेगुलेट करते हो। यहाँ पे देखिए हम ओपन सिस्टम में यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने देखो वेंचुरी मीटर लगाया है, वेंचुरी ट्यूब लगाया है, और वहां पे हम रेगुलेट कर सकते हैं दोनों साइड प्रेशर गेज से, या तो वहां पे आपका एक बॉल वॉल भी होता है, उससे भी आप रेगुलेट कर सकते हो। अल्टीमेटली ज्यादातर जगह ऐसा होता है कि हमको वेंचुरी मीटर के दोनों साइड में प्रेशर गेज लगाना होता है। उस प्रेशर गेज के आप देखते हैं कि कितना डिफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग वैक्यूम जनरेट करते हैं, एंड यू कैन ट्रांसमिट द फर्टिलाइजर इनटू द मेन और सब मेन। ओके, तो यहाँ पे पंपिंग का यूनिट है, आपको कौन सा पंप, जेट पंप यूज करना है, सेंट्रीफ्यूगल पंप करना है, रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज करना है, वो पंप का सिलेक्शन एक अलग टॉपिक है। बट मोस्ट ऑफ द केस में आजकल सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज हो रहा है, तो वी कैन यूज द सेंट्रीफ्यूगल पंप एज पर हेड। कितना हेड आपको डिस्चार्ज चाहिए, जितना ज्यादा हेड आपको डिस्चार्ज चाहिए उतने ज्यादा स्टेज का आपको पंप लगेगा। ठीक है, ये पंपिंग यूनिट है। इसमें आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के आपको ये मिल जाएंगे। एक मिनट, फिर सोर्स होता है। सोर्स बेसिकली कुछ नहीं, आपका ग्राउंड वाटर सोर्स हो गया या सरफेस वाटर सोर्स हो गया। द पंपिंग डिवाइस, कौन सा पंप आप यूज कर रहे हैं। पाइप नेटवर्क, बेसिकली जो मेन लाइन, सब मेन और लेटरल का जो ओवरऑल यूनिट होता है उसको पाइप पाइप नेटवर्क बोलते हैं। मेन लाइन मतलब कि जिसकी थिकनेस ज्यादा होगी वो मेन लाइन है। सब मेन मतलब उससे थिकनेस थोड़ी कम होगी, बिकॉज इफ यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर द डायमीटर शुड बी डिक्रीज एज पर द लेंथ। ओके, तो मेन लाइन का आप डायमीटर देखेंगे 75 mm, उसके बाद आप 63 mm कर देते हैं, है ना। मनी फोल्ड्स, मनी फोल्ड्स यहाँ पे यूज होते हैं, लेटरल्स यूज होते हैं, फिर कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम डिवाइसेस यूज होते हैं। कंट्रोल और मॉनिटरिंग डिवाइसेस आपके ऑटोमेटिक भी हो सकते हैं और मैनुअल भी हो सकते हैं। कंट्रोल डिवाइस बेसिकली आपको रेगुलेट करने के लिए, मॉनिटरिंग डिवाइस मतलब कि आपको देखना है कि इतना अमाउंट आपका फर्टिलाइजर आपका कहाँ गया, कितना अमाउंट ऑफ वाटर आपने दिया, वो सारा कुछ यूज कर सकते हैं। वॉल गेज, वाटर मीटर, वाटर मीटर आपको बता ही चुका। हेड, कंट्रोल हेड, कंट्रोल हेड मतलब कि आपका हेड कंट्रोल करना है, आपको कितना हाइट पे ले जाना है, कैसे ले जाना है, वो आपका ऑन द बेसिस ऑफ पंप सिलेक्शन में आ जाता है। फिल्ट्रेशन सिस्टम, फिल्ट्रेशन सिस्टम में आपका कौन सा आपको फिल्ट्रेशन सिस्टम चाहिए, केमिकल इंजेक्टर्स, एमीटर, टाइप ऑफ ड्रिपर, ड्रिपर ऑनलाइन चाहिए इनलाइन चाहिए। इफ यू आर ग्रोइंग सम crop that row to row distance is fixed, so you can use that inline emitters. Inline emitters मतलब that is a embedded in the lateral pipe, उसमें हर 30 सेंटीमीटर, हर 25 सेंटीमीटर, हर 35 सेंटीमीटर में आपका एमीटर होता है। दैट इज ए सेल्फ प्रेशर कंपनसेटेड एमीटर। उसमें आप प्रेशर देंगे लेकिन वो उसका डिस्चार्ज उतना ही होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, इनलाइन। और ऑनलाइन में आप पंचर करके आप वहां पे डायरेक्टली आप एमीटर को फिक्स कर सकते हैं। फिर ये यहाँ पे आगे आप ये देख रहे हैं, ये एमीटर्स हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में आप ये देख रहे हैं जो एकदम एग्जैक्ट जगह पे अगर आपकी ओपनिंग है तो दैट इज अ इनलाइन सिस्टम। इनलाइन सिस्टम है। अगर आपको लगता है कि जैसे आप मैंगो का ऑर्चर्ड लगाए हैं, आपकी एक प्लांट से दूसरे प्लांट की जो लेंथ है वो अनइवन है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, बिकॉज आप जहाँ पंचर करोगे जहाँ पे आपका प्लांट है। अगर अदरवाइज क्या होगा, इसमें आप देखेंगे इन लाइन में वेस्टेज ऑफ वाटर ज्यादा होता है और एज पर कंपेयर टू ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में आपको जहां पे पानी चाहिए आप वहीं पे पंचर करके आप एमीटर लगा सकते हैं। फिर होता है सॉइल कंपोजिशन। बेसिकली सॉइल कंपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू बेसिकली कि आपको क्या ग्रो करना है। जैसे कि आप देखें, देखा जाए कि अगर हम बात करते हैं राइस की, तो राइस का आप देखेंगे कि रूट डेप्थ ही लगभग 120 mm के आसपास होता है। तो आपको सॉइल की डेप्थ
प्रॉपर होनी चाहिए। और आपके पास कौन सी सॉइल है, दैट विल बी दैट विल बी आइडेंटिफाई दिस ट्रायंगुलर सॉइल ट्रायंगल, बिकॉज आपके पास कितनी सैंड की परसेंटेज है, सिल्ट की और क्ले की परसेंटेज, तो आपके पास कौन सी सॉइल है आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद होता है क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट मतलब किसी क्रॉप को कितना पानी चाहिए, हाउ मच पानी, हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉप। दैट इज द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप। That water requirement of the crop is nothing but that ET plus some 2 or 3% of water, because ET is the evapotranspiration, how much water is evaporated from the field and how much water is transpirated from the plant. So that is the summation of both, that is known as crop water requirement of the particular crop. Okay, so here that crop water requirement is depends on the total depth of the water requirement during the life of the crop irrespective of the source. So conjunctive use the total water requirement for the all plant process or phenology of the plant growth. Okay, and E are the effective rainfall received. Delta is the profile water use, and the GWC is the groundwater contribution, if any. But as per my knowledge, that is the is ET plus 2 or 3% of water is known as crop water requirement. Okay. दैट राइस यहाँ पे दिया हुआ है आपको, मैं ये पीपीटी आपको शेयर कर दूंगा कि हाउ मच वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द क्रॉप इज इन वन सीजन और वन क्रॉपिंग सीजन, so that will be here already shown. Okay, that is sprinkler irrigation we are already described. Okay, that is sprinkler irrigation, the main problem is the skewness. Skewness means the how much skewed water from the direction of wind. Skewed मतलब कि how much water is flowing through the wind, because if suppose water is north to south, सपोज नॉर्थ साउथ में अगर कोई फ्लोइंग हो रहा है, तो आपका जो स्क्यूड होगा नॉर्थ टू साउथ ही होगा। ठीक है, तो आपका जैसे पानी है, अगर कहीं पे पानी गिर रहा है, आप बारिश में भी देखेंगे ओरियोग्राफिक इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, अगर कहीं पे बारिश हो रही है, अगर बहुत तेज अगर हवा के साथ बारिश हो रही है, तो एक साइड ज्यादा भीग जाता है और एक साइड आपको पानी कम देखने मिलता है। तो दैट इज लाइक लाइक दैट वेटिंग पैटर्न इज डिपेंड्स ऑन द स्क्यूनेस। ओके, अकाउंटिंग ऑफ द वाटर, आपको वाटर की अकाउंटिंग पता होना चाहिए कि कितना पानी आपके पास है, उस पानी को आप कितना सरफेस वाटर में इरिगेट करेंगे, कितना स्प्रिंकलर में, कितना ड्रिप में। आपको ओवरऑल ये पता होना चाहिए कि साल भर में हमारे पास इतना ही पानी है, उसको हमको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, और ये हो गया था टेस्टिंग ऑफ द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। इसमें क्या होता है, एक स्प्रिंकलर रहता है, एक स्प्रिंकलर के चारों तरफ हम एक बाउल रख देते हैं, डिफरेंट बाउल रख देते हैं, मतलब एक ग्रिड बना के बाउल रख देते हैं। उसके बाद हमने देखते हैं कि हमने स्प्रिंकलर चलाया और कितना पानी हर एक बाउल में आया, तो आपको उससे ये पता चल जाएगा कि आपका जो स्क्यूड है या नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कैसा है। अगर स्प्रिंकलर के चारों तरफ एक जैसा पानी आता है तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही है। अगर आपके पास देखेंगे कि इफ योर बाउल इज एम्प्टी इन वन साइड एंड वन साइड इज फुल्ली फिल्ड, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे कोई मतलब कि कोई विंड का वहां पे इफेक्ट है, और उतना पानी आपका है वो स्क्यूड हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे मॉइस्चर डिस्ट्रीब्यूशन। मॉइस्चर डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंकलर एज वेल एज ड्रिप इरिगेशन। आपको देखना है कि रूट कहाँ पे है, रूट को आपको प्रॉपर ग्रोथ देने के लिए आपका जो वेटिंग पैटर्न है सॉइल के अंदर, वो भी आपको देखना जरूरी है कि कितने देर में कितनी सॉइल मॉइस्ट हो रही है और कैसा उसका पैटर्न है। तो वो पैटर्न भी आपका डिपेंड करता है कि आपका विंड स्पीड कैसा है और सारा कुछ कैसा है। ये स्प्रिंकलर के उसमें और ड्रिप के इसमें ऐसा है कि आपका जो ड्रॉप है, पर ड्रॉप है, वो कौन सी जगह पे आप उसको डिसाइड करते हो। जैसे आप डायरेक्ट रूट के बीच में देना है वैसा कभी नहीं दिया जाता है, रूट के थोड़ा सा साइड में दिया जाता है, तो वहां से आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उस तरीके से होता है। डिजाइन ऑफ द स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये स्प्रिंकलर इरिगेशन डिजाइन और ड्रिप इरिगेशन का ऑलमोस्ट सेम है। तो एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, उसमें आपको देखेंगे कि आपके वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का क्या चार्जेस है, पंप हाउस का क्या चार्जेस है, क्या पावर कंजप्शन है, पर यूनिट इंक्लूडेड द फुट वॉल, ये सारा कुछ मेन सब मेन का क्या प्राइस है, लेटरल का क्या प्राइस है। फिर उसके बाद आपका देखेंगे लेबर कॉस्ट कितना है और इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना है, या डिजाइन चार्जेस कितना है। तो आप ओवरऑल आप एस्टिमेट करेंगे तो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए आपको 1 हेक्टेयर के लिए ड्रिप इरिगेशन के लिए इतना इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए आपके पास मनी का। फिर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, तो पंपिंग सिस्टम का आपको मेंटेनेंस करना है, स्प्रिंकलर हेड का करना है, क्लीनिंग ऑफ फिल्टर करना है,
एवरी मंथ आपको क्लीनिंग ऑफ फिल्टर करना है, क्लीनिंग ऑफ वेंचुरी एंड फर्टिलाइजर टैंक, बिकॉज दैट कोरोजन इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन द वेंचुरी एज वेल एज फर्टिलाइजर टैंक। वहाँ पे स्केल की समस्या हो जाती है। अगर वहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे कैल्सिनाइज हो जाता है, तो कैल्सिनाइज को आपको कैसे रिमूव करना है? प्रॉपर चेक द प्रेशर गेज, प्रेशर गेज को आपको देखना है कि प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं, उसके जो वो है कांटे हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं नहीं। असेंबलिंग एंड डिसेंबलिंग ऑफ द एंटायर सिस्टम केयरफुली, पाइप एंड फिल्टर फिटिंग, पाइप की फिटिंग सही है नहीं, कोई लीकेज तो नहीं है। क्लीनिंग ऑफ डर्ट एंड सैंड, कोई ऐसा जगह पे है जैसे कि आपको लग रहा है कि एमीटर में कोई डर्ट तो नहीं है। कीप ऑल नट्स एंड बोल्ट्स आर टाइट, मतलब टाइट होना चाहिए। कीप आउट फ्रॉम द डस्ट एंड फॉरेन मटेरियल सैंड सिल्ट। अगर वहां पे कोई ऐसे है कि रैट वगैरह है या कुछ है, वो आपको पाइप को डैमेज कर रहा है, तो उसके लिए प्रिवेंशन आपको देना पड़ेगा, है ना? तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। स्टोर स्प्रिंकलर इनटू कूल एंड ड्राई प्लेस, आपको देखना है जैसे कि स्प्रिंकलर में आपका जो पाइप यूज हो रहा है वो थ्रू आउट द ईयर, आप वहां पे बाहर ऐसे धूप में छोड़ देंगे तो पाइप जल्दी खराब हो जाएगा। अगर आप ड्रिप इरिगेशन में, आप अगर आज की डेट में जो भी आपके पास जो भी पाइप्स आ रहे हैं ड्रिप इरिगेशन के, अगर आप 1 डेढ़ महीना अगर उसको धूप में छोड़ देंगे तो वो पाइप कहीं ना कहीं से डैमेज हो ही जाएगा। तो ये मतलब ड्रिप इरिगेशन का एक ये है कि मतलब आपको ड्रिप इरिगेशन आप लगाते हैं तो उसको रेगुलरली आप 2 3 दिन में एक बार चलाना जरूरी है। अगर पानी उस पाइप में भरा हुआ है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पाइप में अगर खाली हो जाता है पानी तो वो पाइप फटने का डर होता है। ठीक है? तो irrigation scheduling criteria is depends on the soil water regime, climatology and plant indicator, and that all those parameter is required for the design of the irrigation scheduling criteria. Okay, एक मिनट, जस्ट a minute. ओके, तो इसमें क्या होता है, सॉइल वाटर रीजन में फील एंड अपेरियंस, अगर कोई एक्सपर्ट है, कोई कोई ऐसा फार्मर है जो बहुत एक्सपर्ट है, तो सॉइल वो छू के बता देगा कितनी मॉइस्चर है क्या है। या तो सेकंड मेथड है कि डिप्लीशन ऑफ द अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर, आप यहाँ पे सेंसर बेस्ड कर सकते हैं या तो आप उसको वन ड्राई मेथड से कर सकते हैं। फिर आता है आपके सॉइल मॉइस्चर टेंशन, हाउ मतलब टेंसियोमीटर आप लगा सकते हैं। टेंसियोमीटर से आपको क्या पता चलेगा, हाउ मच सॉइल मॉइस्चर टेंशन कितना रिड्यूस हो रहा है वहां पे। जितना ज्यादा वहां पे आपको रीडिंग दिखाएगा उतना वहां पे आपको ये है कि मतलब उतनी ज्यादा स्कैर्सिटी है। फिर क्लाइमेटोलॉजिकल फैक्टर में आपके पास सारे वेदर के पैरामीटर आ जाते हैं। इट मे बी रेनफॉल, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सनशाइन आवर, ड्यू पॉइंट, विंड स्पीड, ये सारा कुछ आ जाता है। उसको आप कैसे करेंगे, जैसे कि ईटी, आप जब बात करते हैं ईटी की तो ईटी में सारे पैरामीटर आ जाते हैं, बिकॉज दैट एफएओ 56 मेथड और पेनमैन मोंटियस मेथड इज द बेस्ट मेथड टू एस्टिमेट द इवोपोट्रांसफरेंस। ओके, तो इससे आप उसको देख सकते हैं, इरिगेशन शेड्यूलिंग को आप देख सकते हैं, बिकॉज वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप इसी से पता चलेगा। फिर प्लांट के इंडिकेटर आ जाते हैं, विजुअल सिम्टम्स, आपको ऐसा दिख रहा है कि पौधे थोड़े से मुरझाए हुए हैं या उसका ग्रोथ सही नहीं है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी वाटर की डेफिशिएंसी है। सॉइल कम सैंड प्लॉट, प्लांट पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट, रिलेटिव वाटर कंटेंट, प्लांट वाटर पोटेंशियल, कैनोपी टेम्परेचर, क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग किस तरीके से हो रहा है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि प्रॉपर ग्रोथ है या नहीं है। तो एज पर ग्रोथ यू कैन डिसाइड द इरिगेशन शेड्यूलिंग क्राइटेरिया और एप्लीकेशन ऑफ द इरिगेशन। ओके, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दैट थर्ड पार्ट, बिकॉज टू पार्ट्स इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, बिकॉज दैट फर्स्ट वन इज दैट वाटर सेट management, and second one is the micro irrigation system, and third one is the sensor based automated micro irrigation system, because that is already we are developed here, that is sensor based automated micro irrigation system. Okay, so there is main control unit and remote terminal unit, that is transmitter and that is receiver, because यहाँ पे आप देखेंगे ये येलो कलर में आपको दिख रहा होगा एमसीयू लिखा हुआ, दैट इज अ मेन कंट्रोल यूनिट। ओके, दैट इज अ ऑटोमेटेड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और माइक्रो इरिगेशन सिस्टम। ये बड़े लेवल पे कैसे हम करते हैं और उसका कैसे क्लाउड के बेसिस पे कैसे वो सारा कुछ मैनेज करते हैं, मैं वो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे रिमोट टर्मिनल यूनिट होता है जिसको ट्रांसमीटर यूनिट बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये बॉक्स दिख रहा होगा आपको आरटीयू करके डिफरेंट प्लेसेस में। तो ये क्या होता है, अलग अलग आपके पास अलग अलग यूनिट है और अलग अलग जगह पे आप अलग अलग चीजें लेते हैं। फॉरेस्ट्री के ट्री ले रहे हो, कहीं कहीं आप पैडी ले रहे हो, कहीं आप कोई ऐसा रबी का क्रॉप ले रहे हो, कहीं आप वेजिटेबल ले रहे हो। इस तरीके से आपको हर जगह पे वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप डिफरेंट है।
ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपके पास एक होता है मेन कंट्रोल यूनिट, वहां से आप सिग्नल देखते हो, हर जगह से आप रिसीव कर रहे हो, और वहां से आप देख रहे हो कि कौन सी जगह को हमको कैसे मैनेज करना है। हर चीज फ्रैक्शन ऑफ मिनट में हमारे पास डेटा आता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डेटा आता है, हम कैसे मैनेज करना है वो आपको बताता हूँ। तो सॉइल सेंसर होते हैं यहाँ पे, डिफरेंट सॉइल सेंसर है, प्लांट सेंसर है, एनवायरमेंटल सेंसर है, और हाइड्रोलिक सेंसर है, और जनरल सेंसर है। तो इसमें आप देखेंगे कि सॉइल सेंसर है, सॉइल सेंसर है बेसिकली टेंसियोमीटर और टेम्परेचर, ये बेसिकली या सॉइल मॉइस्चर डिप्लीशन कैसे हो रहा है उसके लिए अलग अलग सेंसर आते हैं हमारे पास। तो ये हम आर्डिनो बेस पे भी डिजाइन कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो आपका कैसे कैसे डिप्लीट हो रहा है मॉइस्चर, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि अगर इतने दिन में इतना मॉइस्चर डिप्लीट हुआ है तो हमको इतना इरिगेशन और देना है। ठीक है। फिर प्लांट के सेंसर आते हैं, ट्रंक डेंड्रोमीटर आता है। तो इससे आपको ये पता चल जाता है कि प्लांट का कैसा ग्रोथ है, कितना प्लांट का ग्रोथ है पर डे, कितना ग्रोथ है, कितना बढ़ रहा है, कितना सेंटीमीटर बढ़ रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस। एंड एनवायरमेंटल सेंसर मतलब कि एक तो एडब्ल्यूएस होता है, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में सारे वेदर के पैरामीटर हैं। इट मे बी रेनफॉल, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सनशाइन आवर, आपका सॉइल टेम्परेचर हो गया, फिर उसके बाद ड्यू पॉइंट हो गया, ये सारा कुछ आपको एक जगह पे सेंसर के थ्रू, आप वहां पे एक डेटा लॉगर लगा होता है, उससे आप डायरेक्टली डेटा को लॉग करके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्या टेम्परेचर का वेरिएशन है, क्या रेनफॉल का वेरिएशन है। ऑटोमेटिक आपका रेन गेज लगा होता है, सब कुछ उसका सारा कुछ डेटा आता रहता है। तो इसको भी आप क्या है आर्डिनो बेस्ड कर सकते हैं, हमने ये भी कर रखा है आर्डिनो बेस्ड। और हाइड्रोलिक सेंसर, इसमें वाटर मीटर, फर्टिलाइजर, प्रेशर सेंसर, कहाँ पे प्रेशर कम है ज्यादा है, फर्टिलाइजर कितना डोज देना है, वाटर कितना, वाटर का फ्लो देना है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर देना है, दैट विल बी रेगुलेट बाय द हाइड्रोलिक सेंसर। ठीक है। फिर जनरल सेंसर, जनरल पर्पस सेंसर, बिकॉज जनरल पर्पस सेंसर इसलिए जरूरी है क्योंकि जितना मॉनिटरिंग करना है हमको, हम उसमें कर सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कंट्रोल यूनिट ऑफ ऑटोमेटेड माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, यहाँ पे आप देखेंगे मेन कंट्रोल यूनिट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक एंटीना जैसा, ये है। फिर उसके बाद आप देखेंगे सॉइल मॉइस्चर सेंसर में हमने क्या किया, 3 डिफरेंट रूट डेप्थ पे हमने सॉइल मॉइस्चर सेंसर लगा रखा है। तो 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, या 5, 10 और 20, एज पर योर रिक्वायरमेंट कि आप कौन सा क्रॉप ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ देखेंगे बैटरी ऑपरेटेड आपका यहाँ पे रिमोट टर्मिनल यूनिट होता है। तो ये क्या होता है, सिग्नल यहाँ से आपको, सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट करता है, और मेन कंट्रोल यूनिट है वो आपका जो सिग्नल है उसको रिसीव करता है। फिर आपको हर चीज की वहां पे जितने भी हमारे सेंसर लगे हैं, सारा का सारे सेंसर का वहां पे रिजल्ट वहां पे हमको मिलता रहता है कि हमको कैसे, मतलब अगर सॉइल मॉइस्चर रिड्यूस होता है तो ऑटोमेटिक हमारा इरिगेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। आपका प्लांट ग्रोथ है, प्लांट ग्रोथ जितना होना है उतना, अगर प्लांट ग्रोथ नहीं होता है आपके पास, यहाँ पे देखेंगे कि ट्रंक डेंड्रोमीटर से आप ये देख लोगे कि कितना ग्रोथ हो रहा है। अगर उतना नहीं हो रहा है तो आपको उसमें देखना पड़ेगा कि कोई फर्टिलाइजर की कमी है या नहीं है। अगर फर्टिलाइजर यूनिट को आपको ऑपरेट करना है तो फर्टिलाइजर के अलग सेंसर लगे हैं कि कब पंप स्टार्ट करना है, कब नहीं करना है। ठीक है। तो ये सेंसर बेस्ड ऑटोमेटेड माइक्रो इरिगेशन सिस्टम में आप देखोगे कि यहाँ पे आपको डिफरेंट, आपको यहाँ पे जो हमने इरिगेशन वहां पे देखा माइक्रो इरिगेशन, वो सारा कुछ यहाँ पे है, बस हम सेंसर बेस्ड कर दिए हैं। तो हमारे पास डिफरेंट फील्ड है, RT1, RT2, RT3, उसमें अलग अलग क्रॉप लगे हुए हैं। हर एक क्रॉप का आपको वाटर रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो यू कैन रेगुलेट योर वाटर रिक्वायरमेंट बाय द वे ऑफ ऑटोमेटिक सेंसर बेस्ड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ओके। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे, तो हम दिखा देते हैं थोड़ा, एक मिनट ये दिखा देते हैं। तो आप देखेंगे सेंसर यूनिट में टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, लाइट सेंसर और रेन सेंसर, ये सब कुछ है। हमको माइक्रो कंट्रोलर में हम इसकी कोडिंग करते हैं कि कितना हमको, अगर मान लो कि 40%, 45% से 40% अगर मॉइस्चर लेवल आता है तो हमको फिर से इरिगेट करना है, और इरिगेट इतना करना है कि फुल्ली सेचुरेटेड हो जाए, या 80% सेचुरेट हो जाए, तो ऑटोमेटिक फिर बंद हो जाएगा। अब वो मॉइस्चर, कितना टेम्परेचर है, कितनी विंड स्पीड है, इसके अकॉर्डिंग वो रेगुलेट होता रहेगा कि कितने देर में वो मॉइस्चर ऑटोमेटिकली डिप्लीट हो जाएगा। फिर ऑटोमेटिकली हम लोग क्या करेंगे, फिर से वो पंप फिर से चालू कर देगा। फिर उसके बाद वहाँ पे GSM मोबाइल यूनिट होता है, वहाँ पे सिम लगा होता है, डेटा लॉगर लगा होता है, वहां से डेटा हमारे पास डायरेक्ट मोबाइल में आ जाता है। ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे खेत में वाईफाई या इंटरनेट देना बहुत मुश्किल होता है, तो हम GSM मॉड्यूल यूनिट यूज करते हैं, जिसको डायरेक्टली हम वहां से डेटा लॉगर के थ्रू डेटा हम ले सकते हैं। ठीक है।
तो इस तरीके से ओवरऑल हम क्या करते हैं कि जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है उसको हम यहाँ से रेगुलेट करते हैं। तो ये हम एनवायरमेंटल कंडीशन, प्लेस रूफेड बिल्डिंग, हमारे पास इसमें क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या कंडीशन देनी पड़ती है। हमारे पास एक प्रॉपर एक यूनिट होना चाहिए, आपके पास डेटा लॉगर होना चाहिए, आपके पास रिसीवर होना चाहिए, ट्रांसमीटर होना चाहिए, ऐसा प्लेस होना चाहिए, ऐसी बिल्डिंग होना चाहिए जो कि वहां पे आपका रूफ प्रूफ हो, बिकॉज आपका अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर आपका पानी पड़ेगा तो खराब हो जाएगा, तो इसलिए ऐसा यूनिट होना चाहिए कि वहां पे आप प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट। डायरेक्ट सनलाइट में नहीं, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर ऐसे डिजाइन होते हैं कि आपको उसमें जो टेम्परेचर मेंटेन करना उतना करना पड़ेगा। kept an ambient temperature between 10 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, kept an maximum relative एयर ह्यूमिडिटी 85%। ऐसा जगह नहीं होना चाहिए जहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज्यादा है। मॉइस्चर ज्यादा होने से आपको यही पता होगा, आपके घर के डेस्कटॉप में भी अगर रैम में मॉइस्चर आ जाता है तो नहीं चलता है, समथिंग लाइक दैट। तो प्रॉपरली वेंटिलेटेड होना चाहिए, प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डस्ट होना चाहिए, प्रोटेक्टेड फ्रॉम द स्प्लैशेस और डायरेक्ट स्प्रेइंग विद द वाटर और केमिकल, इससे वो ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होना चाहिए। फिर अगर salient features, the monitoring data from the wide range of the sensor and data points including third party sensor। उसमें हम क्या करते हैं कि आजकल ये आपको अगर ओवरऑल अगर इरिगेशन का ये पूरा बनाना है लो कॉस्ट माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, तो दैट विल बी कॉस्ट इज अबाउट आई थिंक लगभग 5 से 6 हजार में बन जाएगा। है ना, कंट्रोलिंग कैसे कंट्रोल करना है आपको, वो न्यूट्रिशन कंट्रोल कैसे करना है, डोजिंग कैसे करना है, एग्रोनॉमिकल सपोर्ट कैसे करना है, तो ये सारी चीजें इसमें है। एडवांटेजेस ऑफ द स्मार्ट सिस्टम, फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी, आप कहीं से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ड्राइविंग इफिशियंसी, डेटा इंटीग्रेशन फ्रॉम द ऑल सोर्स कंबाइंड विद द कंट्रोल कैपेबिलिटी। इसमें एक फायदा ये है कि आपके पास लगातार डेटा आता है, तो आपको डेटा एनालिसिस करके या उसमें आप आपका जो एडवांस टेक्निक्स है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एज वेल एज आपका जो भी आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी चल रही है एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी, उसको आप इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपको और ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं आप उसको। पीस ऑफ माइंड है, ऑटोमेटेड इरिगेशन है, अलर्ट सिस्टम है, अगर कुछ ऐसा हो होता है कि कुछ एबनॉर्मेलिटी दिखती है तो आपको अलर्ट हो, अलर्ट में आपके पास आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। रिमोट कंट्रोल है, फुल रिपोर्ट्स एंड इवेंट हिस्ट्री है, फुल्ली मॉड्यूलर एंड यूजर फ्रेंडली है। साथ ही में आप इसमें रिसर्च कर सकते हैं मेजर। तो ये है सेंसर बेस्ड ऑटोमेटेड माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स हैं। ये मैंने जो यूज किया है हमारे यहाँ पे, हमने इसको डिजाइन किया था। हमने एनपी के सेंसर भी वहाँ पे यूज किया है। दैट विल दैट विल बी वी आर इंट्रोड्यूसिंग नेक्स्ट मंथ इन माय स्टूडेंट्स एमटेक प्रोजेक्ट। है ना, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें एनपी के सेंसर और साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन भी हम देख रहे हैं। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कौन से एरिया में कैसे डिप्लीट हो रहा है, और साथ ही साथ एनपीके कैसे डिप्लीट हो रहा है, और सारे वेदर के कंडीशन वहाँ पे ओपन वेदर कंडीशन है हमारे पास, और हमने क्रॉप अलग अलग क्रॉप लिया है, हम देख रहे हैं उसको क्या इफेक्ट आता है और हमारे पास क्या डेटा आता है। उस डेटा को हम एनालाइज करके हम उसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब सारा कुछ आपको ये इजिली अवेलेबल हो जाएगा, रायपुर में भी आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगा, बाकी आपको इसमें भी मिल जाएगा। तो इसकी कोडिंग भी आपको मिल जाएगी, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है आर्डिनो का कोडिंग। और दैट इज समथिंग लाइक दैट, पाइथन कोडिंग टाइप का होता है। फिर सेंसर ऑफ द हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स के लिए हमने भी सेंसर डिजाइन किया है, उसको हम हाइड्रोपोनिक्स में हम अप्लाई कर रहे हैं। तो अब ये फीचर्स एंड एडवांटेजेस हैं, मैं ऑलरेडी आपको एडवांटेजेस फीचर्स बता चुका हूँ। इसमें क्या होता है, हाइड्रोपोनिक्स में हम क्या करते हैं, दैट इज सॉइल लेस मीडियम है। बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, हम तो या तो रॉक वूल यूज करते हैं, रॉक वूल यूज करते हैं, या तो हम यहाँ पे आपके आपके डायरेक्ट आपको वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हम डायरेक्ट देते हैं। और रूट को हमको प्रोटेक्ट करने के लिए हम ऐसा कोई भी मीडियम ले सकते हैं, जैसे हम जैसे कोकोपीट भी लेते हैं, कई जगह, कई जगह आप डायरेक्टली फ्लोट भी कर सकते हो। तो ऐसा ऐसा हम वहाँ पे एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, और उसमें कंटिन्यूअसली न्यूट्रिएंट की मॉडलिंग भी होती है, साथ ही साथ मेजरमेंट भी होता है। तो हाउ मच न्यूट्रिएंट लॉसेस एज वेल एज हाउ मच न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड। तो ये हम ऑटोमेटिकली इसको भी हम मॉड्यूल कर सकते हैं थ्रू द यूज ऑफ द डिफरेंट सेंसर। तो उसमें आपको एनपी के सेंसर से भी आप पता कर सकते हो कि कितना आपका न्यूट्रिएंट लॉस हो रहा है, और उसको हम डायरेक्टली हम यहाँ पे उसको मॉड्यूल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये इसमें जो क्वालिटी ऑफ जो प्रोडक्ट आता है वो बहुत अच्छा आता है।
बट इसमें एक चीज हमको ये ध्यान रखना होता है कि प्रोटेक्टेड एरिया में ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आप इसको ओपन में रख देंगे तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। बट इफ इट इज इन सपोज प्रोटेक्टेड एरिया, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में आप इसको यूज करेंगे तो वहां पे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये हाइड्रोपोनिक्स का सेटअप है। ये सेटअप में आप देख रहे होंगे नीचे वाटर है और ये फ्लोटिंग टाइप हाइड्रोपोनिक सिस्टम है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने इसमें आपका न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स लॉस कितने हो रहे हैं, कितने टाइम में कितना न्यूट्रिएंट लॉस हो रहा है, कौन सी स्टेज में कितना न्यूट्रिएंट देना है, वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट, उसको हम ऐड करके हम ये देख लेते हैं कि कितना ग्रोथ के लिए कितना हमको मिनिमम न्यूट्रिएंट्स चाहिए। और ये इसमें सॉइल लेस मीडियम है तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये इस टाइप के कुछ इमेजेस हैं जिसको आप देख सकते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमको लाइट नहीं तो यूवी लाइट हमको देना होता है। जैसे यूवी लाइट आप देंगे तो आपको जो भी फोटोसिंथेसिस है वो प्रॉपर हो जाती है। और या तो अदरवाइज आपका पार्सली शेडेड होना चाहिए जो जहाँ पे आप इसको कर रहे हैं। ओके, द आउटपुट ऑफ द हाइड्रोपोनिक्स लाइक दिस, मतलब इस तरीके से होता है। ओके, थैंक यू। एनी क्वेश्चन? Thank you, sir, for taking the time to share your insight on such an important and valuable topic, covering in detail about watershed, its objective, how it's helpful in increasing productivity, along with modern method of irrigation such as drip irrigation, sprinkler irrigation, as well as explaining about irrigation scheduling. You made us all understood this complex topic with very easily and effortlessly with the help of suitable diagrams as well, which was really appreciable. And now I invite Kumari Shushmita ma'am to please ask the questions that we have from the audience side. Thank you, Roma. Sir, there are some questions from participant side. One Yeah, question yeah. is from Mehraj Sofi. Okay. Sir nicely talked about different agronomic and mechanical measures for controlling soil erosions like contour bounds, strip cropping, Yeah, etc. But we yeah, often use these practices at particular slope, say 2% or 5%, etc. What does yeah, this yeah. percentage here means? How much percent? To like particular slopes like 2% or 5%, etc. What does this percentage here means? That percentage slope means that how much percentage slope is required name. That means that is natural slope is there. If you are going to that tea farming, so there is in Assam region, there is more than 9% slope. There is that contour, burns, and that strip cropping. That pattern is we are using in that Assam region. If suppose that exceed to 9% slope, there is mechanical measures is required. Suppose like uh, there is different that is terraces we are required, because terraces is up to 19% slope we can use the terraces. Okay, that invert terraces we can use. And if they suppose that more than and 25% slope we can use that mechanical measures, spillway and burns we can use that spillway as well as drop spillway, shoot spillway, something like that for the sediment measurement. Okay, so as per slope we can decide the which kind of measurement practices we can use in that particular place. That is based on the slope. Sir, the participant is asking, what does this percentage mean? Like, what does this percentage show? That percentage show means that percentage is related to your land slope, no? That land slope is related to percent, because if suppose we are working on that plain land, so we can use that bund. There is slope is suppose 1 or 2% maximum. So you can find out that slope by the different way. You can use that theodolite, dumpy level, something like that. Okay. Oh, thank you, sir. He's asking one more question. Sir, please throw a light on bi-cell irrigation. Bi-shell irrigation. Yes, sir. Bi-shell irrigation, I don't idea about that bi-shell irrigation. Bi-cell irrigation. Bi-shell, no, I don't have an idea. Yes, sir.
So there is one question from Dr. H.R. Dhanetia. Sir, is there any technical support system that is helpful in determining the groundwater table depth and the quantity of groundwater for borewell purposes? Borewell purposes, there is some sensor is already developed by the CGWB, because if there is because that is used, that application is used in that observation wells. Okay, in different depth, there is some sensor is already available, because if you are using that groundwater level, so we can use that resistance method, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मेथड बेसिकली. तो हम क्या करते हैं, उसमें दो वायर होता है और उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो अगर कहीं पे पानी में टच होता है, तो पानी में टच होता है तो हमको ये पता चल जाता है कि इतनी वहां पे डेप्थ है. तो बेसिकली दैट इज अ रेगुलर मेजरमेंट, बट इन सम केसेस देयर इज सम एडवांस सेंसर इज ऑलरेडी डेवलप्ड बाय CGWB. वी कैन यूज दैट ग्राउंड वाटर लेवल फ्लक्चुएशन इन डेली बेसिस. तो उनका जो मेजरिंग वेल होता है, मेजरिंग वेल होता है, वहां पे उन्होंने ऑलरेडी लगा रखा है. तो वो डे बाय डे मतलब रियल टाइम में उनको वहां पे से डेटा मिलता रहता है, हाउ मच ground water level is fluctuating, because the ground water level is fluctuating by the mean of that anthropogenic activities also. Because अगर दो वेल आस पास हैं, तो अगर वहां से एक वेल में अगर हम पानी अगर सक करते हैं तो दूसरे वेल में उसका इफेक्ट दिखेगा. तो कोन ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं वो फिनोमिना को बेसिकली. तो ऐसे वहां पे सेंसर ऑलरेडी उन्होंने डेवलप किया है. आप वहां कांटेक्ट करेंगे तो आपको डेफिनेटली वहां से कुछ ना कुछ मिल जाएगा. Thank you, sir. Sir, Mehraj Sophie is asking how sprinkle irrigation is helpful in overcoming frost problems during winters. विंटर्स में तो स्प्रिंकलर तो विंटर्स में यूज करते ही हैं हम यहाँ पे. विंटर्स में आप यूज कर रहे हैं, आप देखेंगे कि जो भी चने के खेत हैं ये सब में हम स्प्रिंकलर हम यूज कर रहे हैं. स्प्रिंकलर बेसिकली वहां पे हमारे पास ज्यादा यूजेबल है जहाँ पे अंडुलेटिंग सरफेस है. बेसिकली अगर आपके पास प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस में तो आप ड्रिप इरिगेशन भी यूज कर सकते हैं एज पर योर क्रॉप रिक्वायरमेंट, हाउ विच क्रॉप यू आर ग्रोइंग दैट पर्टिकुलर प्लेस. बिकॉज अगर आपने वहां पे चना लगाया है, कुछ लगाया है, तो वहां पे आपको क्या होता है, वाटर रिक्वायरमेंट आपको एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 घंटे आपको स्प्रिंकलर चलाना है. तो वो स्प्रिंकलर आप जहाँ पे चलाएंगे, अल्टीमेटली वहां पे क्या है, मॉइस्चर आपको वहां पे प्रॉपर देना पड़ता है. और ऐसे क्रॉप जहाँ पे आपको प्रॉपर मॉइस्चर की अगर रिक्वायरमेंट है, वो भी मॉर्निंग टाइम में है, तो मॉर्निंग टाइम से तो ड्यू फुलफिल कर देता है. अगर मान लो आपको 12 बजे के बाद भी मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे हमको स्प्रिंकलर इरिगेशन हम वहां पे यूज करते हैं. और मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको अंडुलेटिंग सरफेस में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप क्या करेंगे, अगर आप सरफेस इरिगेशन आप यूज करते हैं अंडुलेटिंग सरफेस, तो अंडुलेटिंग सरफेस में आपको सरफेस इरिगेशन आप यूज करेंगे तो कहीं पे पानी पड़ेगा, कहीं पे पानी आपको प्रॉपर मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा. बट आप स्प्रिंकलर यूज करते हैं, इट इज समथिंग लाइक दैट आर्टिफिशियल रेनफॉल. तो आर्टिफिशियल रेनफॉल है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि वहां पे आपका जो विंड वेलोसिटी है वो थोड़ा सा कम हो. The wind velocity is less than 4 kilometer per hour. That is sufficient for the sprinkler irrigation. If that will be exceed from the 4 kilometer per hour, that will be irrigation is automatically skewed. Okay. Thank you, sir. So Dr. H.R. Dhanetia is asking, what are the major differences between watershed development programs and watershed management programs? Watershed management, because watershed development is under watershed management basically. A watershed management and watershed development. If you are managing the watershed, it is automatically developed. Okay. अगर आप वाटरशेड मैनेजमेंट कर रहे हैं, सपोज मैंने इतने सारे आपको जो चीजें दिखाई है, वाटरशेड मैनेजमेंट है. और वाटरशेड डेवलपमेंट मतलब कि वहां पे आपको गवर्नमेंट अलग से कुछ चीज सपोर्ट कर रही है, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट से मिल रहा है, एनजीओ से मिल रहा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ that watershed with the incorporation of the public, PRA, public participatory rural appraisal जिसको बोलते हैं, जो आपके वहाँ के लोकल पर्सन है उनको वहाँ पे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको वहाँ पे वो हो रहा है, तो वो आपको डेवलपमेंट में हेल्प करेगा. और मैनेजमेंट में आपको जितनी चीजें आप साइंटिफिकली मैनेज कर सकते हैं वो सारी चीजें मैनेजमेंट में कंसीडर करते हैं. Thank you, sir. There are some more questions from Dr. H.R. Dhanetia, sir. Sir, what is the success rate of sensor-based irrigation system, especially in fluoride belts where flow deposition disrupts sensor performance?
It is a rough idea is about 80 to 85% success because there may be problem of the scaling because scale और जो भी इरोजन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ऐसी जगह पे है जहाँ पे केमिकली इफेक्टेड है। तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं जैसे कि आपके पास ट्रीटेड वाटर आप यूज करेंगे तो दैट विल बी एक्सीड अप टू 95 to 98% सक्सेस बिकॉज दैट मेन प्रॉब्लम इज द कोरोजन एंड स्केल। ओके कि आपको वहां पे कैल्सिनाइज हो जाएगा या कुछ हो जाएगा जिसके कारण आपके जो इरिगेशन सिस्टम्स है वो डिस्ट्रॉय होने के प्रॉपर वहां पे प्रॉब्लम होती है। तो आप अगर देखेंगे अगर फॉरेन कंट्री में आप जाके देखेंगे तो सबसे पहले वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट के बाद फिर अप्लाई करते हैं। तो आफ्टर वाटर ट्रीटमेंट दैट विल एक्सीड अप टू 95 to 98% सक्सेस। Dr. H.R. Dhanipte is asking, what are the sources of liquid nutrients for hydroponics? Yeah, there is different types of nutrients is available. Like in early stages, 19, 19, 19 is sufficient because that is a NPK percentage basically. 19, 19, 19 is initial stage up to the growing stage. और उसके बाद आपको 29, 15, 19 ये आप अगर फर्टिलाइजर आप यूज करते हैं तो आपको फ्रूटिंग और फ्लावरिंग स्टेज के लिए प्रॉपर है और दैट इज रेडली अवेलेबल इन द मार्केट बिकॉज आप कोई भी ऐसे जो फर्टिलाइजर की शॉप है वहां पे भी आपको वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। तो एज पर यूर स्टेज मतलब क्रॉपिंग स्टेज के अकॉर्डिंग आपको जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स है उसको आपको रेगुलेट करना पड़ता है या उसको चेंज करना पड़ता है। बट इनिशियल स्टेज के लिए, ग्रोइंग स्टेज के लिए, सीडिंग के लिए आपका 19 19 19 सफिशिएंट। Thank you, sir. That's all from participant side, sir. Thank you for Okay. your engaging and insightful presentation as well as addressing all the participant queries. I'm confident that participants have greatly benefited from extensive expertise. We sincerely appreciate your willingness to share your profound knowledge with us. Wishing you continued success in your path. Thank you once again, sir. Okay. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Very Thank you. nice presentation, sir. Totally Thank you. different. Thank you. As we conclude tonight's program, I would like to express my heartfelt gratitude to our esteemed presenters. Your sharp insights and extensive expertise has been truly inspiring, enriching the knowledge of all our participants. It has been an honor to learn from you all. We We extend our best wishes for your future endeavors. I also like to thank our participants for their attentiveness and active engagement throughout the session. On behalf of Vital Biotech, the Agricultural Forum for Technical Education of Farming Society, Kota, Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, Raipur, the University of Agricultural Sciences, Raichur, Karnataka, Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur, Chhattisgarh, Farmers Park, Hyderabad, Telangana, and the entire organizing team, I deliver my heartfelt gratitude for joining to our esteemed guest, distinguished speaker, and enthusiastic participants for joining this 21 days winter school program. Your patience, active engagement, and attentiveness throughout the program has been truly admirable. Thank you once again for your invaluable contributions. Have a delightful evening. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.